Good afternoon, everyone. I, Pratap Malik, Director, Training and Placement Cell, Guru Jambeshwar University of Science and Technology, Hisar, welcome all the viewers in the first inaugural edition of this very special program series on life skills. So, let me introduce you with our today's guest who will be interacting on a very important topic of life skills, which is power of habits. So, we are having with us Mr. Pankaj Asija. Mr. Pankaj Asija is leadership mind strategist and peak performance expert. He delivers his message using engaging real life stories, self depreciating humor, personal experience, and research proven tactics. So, today Pankaj Asija will be interacting with us. Thank you, sir. Thank you very much for having me on the show, sir. It's my privilege to be here with you all. One more thing I would like to add regarding Pankajji. Pankajji has authored two very important books. One is Life's Vitamin, and second is Campus to Corporate. He is also member of Professional Speaker Association of India and Asia Professional Speaker Singapore. He has already helped hundreds of leaders to perform at peak level under worst circumstances. So today we will be interacting on the topic power of habits with Pankajji. I would like to start with a very basic thing, that what is the role of habit in making or breaking the personality? So personality starts from our habits. We must have heard in our childhood, what your thoughts, they become your words, what your words, they become your action, what your action, that become your correct habit, and habit forms your character, and character is your personality. Basically everything is starting from the thoughts, and once your thought becomes a word, action, and repeatedly action becomes your habit, and habit आपकी आदत ही आपका चरित्र बनता है. क्योंकि let's say आप सिगरेट्स पीते हैं, let's say anyone is a smoker, तो हम उसको क्या कहते हैं, he's a chain smoker. हम उसको क्यों कह रहे हैं कि he's a chain smoker? क्योंकि उसको पीने की आदत है. अब उसका चरित्र से हम उसको जानने लग जाते हैं, धीरे धीरे उसका पूरा व्यक्तित्व ही उसका चरित्र बन जाता है. तो इसलिए हम कहते हैं कि हैबिट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैबिट आपका चरित्र, आपका व्यक्तित्व, आपका पर्सनालिटी बनाती है. तो अगर हमारे हाथ में हैबिट्स कंट्रोल में है हमारे, तो हमारा व्यक्तित्व पूरा हमारे कंट्रोल में रहता है, हमारा चरित्र हमारा पूरा हमारे कंट्रोल में रहता है. सो योर क्वेश्चन वाज देयर कि हैबिट्स का क्या रोल है हमारी पर्सनालिटी में. दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग. हैबिट से ही हम जाने जाते हैं, अपनी आदतों से ही हम जाने जाते हैं. जो लोग तेज बोलते हैं, हम उसकी आदत है तेज बोलने की, इसलिए उसका करैक्टर इसी तरीके से हो जाता है. हम कह देते हैं आ गया बुलेट ट्रेन, क्योंकि वो बहुत तेज बोलता है. इसी तरीके से जो लोग पैसा बहुत कम खर्च करते हैं, जो माइजर हैं, स्टिंजी हैं, अब हम उनको, उनकी आदत है पैसा कम खर्च करने की, तो हमारा उनका व्यक्तित्व क्या होगा, कंजूस का. जब भी वो आएंगे तो हम उसको देखकर कहते हैं, लो आ गया तेरा भाई कंजूस. सो दिस इज वे habit forms our personality, sir. Rightly said. So that's why we say that if we mind our thoughts will become words, and then words will become actions, and actions will become habits, and that basically leads to our personality. So Pankaji, I would like to proceed. You are a expert in peak performance area. So Right. what does this peak performance mean, and how does habit help achieving the high and peak performance? So peak performance, see, I've been in this industry for 2 years in the peak performance. I started my career with a motivational speaker, then the leadership, and then the peak performance. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी ये कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, पीक परफॉर्मेंस क्या है. एंड दिस अ वंडरफुल क्वेश्चन, सर. आई रियली लाइक द क्वेश्चन. पीक परफॉर्मेंस इज, सी, हमारा छोटा घर पे बच्चा है, वो भी परफॉर्म कर रहा है, हम खुद भी परफॉर्म कर रहे हैं एज अ लीडर, और हमारे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं सब परफॉर्म कर रहे हैं. और ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक टाइम पीपल आर परफॉर्मिंग एट देयर होम. अब कुछ की परफॉर्मेंस बहुत डाउन चली गई है, कुछ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई है, कुछ उसी समय के अंदर 1 लाख रुपीस का बिजनेस करते हैं, कुछ उसी समय के अंदर सिर्फ 10,000 का बिजनेस करते हैं. अगर मैं स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करूं, तो कई बार हमने ऐसा देखा है कि कुछ बच्चे आधे घंटे में वो चीज याद कर लेते हैं, जबकि दूसरे बच्चे उसी चीज को याद करने में लगभग 2 दिन लगा देते हैं या आधा दिन लगा देते हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पीक परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजीज नाउ.
So peak performance mean to perform best at the highest level in minimum time with a minimum efforts. और हैबिट से ही ये पॉसिबल है. ये मॉर्निंग रिचुअल्स है, आप मॉर्निंग में सुबह उठ के कैसे कर रहे हैं, अपने ब्रेन को कैसे कंडीशनिंग कर रहे हैं, जो आपको परफॉर्मेंस में हेल्प करेगा. अगर आपके अंदर अच्छी आदतें नहीं है तो परफॉर्मेंस को वहां पे ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल है. जब भी मेरी कोई कॉर्पोरेट या लीडरशिप की ट्रेनिंग होती है तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि आप एक पेपर पे अपनी वो आदतें लिख के दो जो आदतें आपको रोक रही हैं, और दूसरे पेपर पे वो आदतें लिख कर दो जो आदतें आपको आपकी वर्क को बूस्ट कर रही हैं. तो मैं जनरली देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने 20 हैबिट्स लगभग लिखी हैं जो उनकी परफॉर्मेंस को रोक रही है, और 5 और 6 हैबिट्स ऐसी लिखी हैं जो उनकी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर रही है. अब हमारा पीक परफॉर्मेंस कोचिंग में काम क्या होगा? बहुत सिंपल, वो 20 हैबिट्स को तो बंद कर देना और 6 हैबिट्स को और ज्यादा डेवलप कर लेना, और उसके साथ 2 4 5 हैबिट सबके साथ ऐसी होती हैं जो उनको पता भी नहीं होता कि ये हैबिट डेवलप हो जानी चाहिए ताकि परफॉर्मेंस बेटर हो जाए. इसलिए हम वो आदतें उनसे डेवलप करवाते हैं टू रीच एट अ पीक परफॉर्मेंस लेवल. हम ह्यूमन बीइंग आदतों अपनी आदतों से ही जाने जाते हैं और अपनी आदतों से ही अपना काम करते हैं. जिन लोगों को सुबह से शाम तक काम करने की आदत है, उसको आप कोरोना टाइम में घर बिठा दो, वो डेफिनेटली उस समय भी काम करेंगे घर पे बैठ के और बहुत अच्छा काम करेंगे. बट जिनको ऑफिस में बैठ के काम करने की आदत नहीं है वो घर पे भी बैठ के कोई काम नहीं करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट हैबिट्स सर. हम परफॉर्म करते हैं बिकॉज ऑफ आवर हैबिट्स एंड वी आर स्लेव्स फॉर आवर हैबिट्स. अपने आदतों के तो हम दास बन चुके हैं. इसलिए हमें कुछ आदतें पता भी नहीं है कि ये आदत है हम में, क्योंकि वो आदत कंडीशनिंग हो चुकी है उसकी. तो हैबिट्स हेल्प इन अचीविंग द पीक परफॉर्मेंस इन दिस वे सर. Okay, very right. Pankaj, I recall one example. One Krishna, Lord Krishna, went to Duryodhan, and he interacted with Duryodhan with all the wrongdoings he was basically involved in. And then Duryodhan told a shlok. He told that Prabhu, janami dharmam nacha me pravritti, janami adharmam nacha me nivritti. It means that Lord, I know what is wrong and what is right, but that is not my habit. My habit is to do wrongs. That's why I'm doing the wrong. So this Right. is where power of habit comes into the picture. So Pankaj, do you also see any role of company in making a habit? Whether we are having good company or bad company, does it make any sense in making the habit? Sir, you must have heard about one thing. Show me your 5 friends today. I'll show you a future of 5 years. आप अपने 5 दोस्त दिखाओगे तो मैं 5 साल का फ्यूचर बता दूंगा. तो कंपनी का रोल तो बहुत ज्यादा है. मैं आई वुड गिव यू एन एग्जांपल. टिल 4th क्लास आई वाज स्टडीइंग इन अ डिसेंट स्कूल. नहीं, मैं कहूंगा कि सारे स्कूल डिसेंट होते हैं. इन 5th क्लास वी हैड सम इकोनॉमिकल इश्यूज एंड माय मदर पुट मी इन अ स्कूल वेयर everybody would speak in Haryanvi, and they would use the helping verb of Haryanvis or AMC, BCs and all. This is not a platform I can use those verbs. So ab I never used those helping verbs in my life before that, or Haryanvi I never spoke in that. It's a wonderful language, it's a wonderful regional language. But 5th और 6th क्लास पे अब मेरा जो एटमोसफियर रहा, मेरी जो कंपनी रही, वो इन्हीं लोगों के आसपास रही. मुझे नहीं पता था कि कितोड़ जावे का क्या मतलब होता है और कीत जावे का क्या मतलब होता है. And somebody when asked me first time कितोड़ जावे कीत जावे, I thought he is abusing me. I took him to the principal sir and said, sir, he was abusing me, and he said कितोड़ जावे. That was my second day in that school. But when I passed out my 2 years in that school, 5th and 6th class, I switched to another school, and my every friend used to say, पंकज यार गाली मत दे. मैं कहा मैं गाली देता ही नहीं यार हरियाणवी मत बोल. मतलब मैं हरियाणवी बोलता ही नहीं. तो क्या है कि मुझे पता भी नहीं लगा कि मैं हरियाणवी बोलने लग गया, और मुझे ये भी नहीं मालूम पड़ा कि मैं गालियां देने लगा. दिस ऑल एमसीज बीसीज बिकेम माय डे टू डे वर्ड्स. अब जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं गालियां दे रहा हूं, तो मैंने सोचा कि मैंने गालियां देनी कब सीखी. मेरी कंपनी से सर. मेरी जो आसपास के लोग थे वो गालियां देते थे. मेरे आसपास के लोग थे वो कई बार अभद्र शब्दों का यूज करते थे, अब्यूजिव लैंग्वेज, दे यूज्ड टू कॉल नेम. तो दैट ऑल बिकेम माय हैबिट. सो मुझे वहां से पता लगा कि आदत डेवलप होती है जिनके साथ आप रहते हो. देन इट टुक एंटायर 7th and 8th क्लास टू ओवरकम दोज हैबिट्स. और 9th 10th में मेरी लैंग्वेज दोबारा से प्योर होने लगी, और 11th में मुझे एटमॉस्फेयर ऐसा मिला कि पीपल वर टॉकिंग इन इंग्लिश, माय इंग्लिश इंप्रूव्ड. और फिर उन लोगों के साथ मैंने रहना शुरू किया जो पॉजिटिव सोचते हैं.
तो मैं ट्रमेंडस पॉजिटिव हो गया। उससे पहले मैं ब्लेम करता था सिचुएशन को, इकोनॉमिकल सिचुएशंस को, फाइनेंशियल इश्यूज को, फैमिली सिचुएशंस को। मेरा ब्लेम करना छूट गया क्योंकि मेरे जो साथ वाले लोग थे वो कभी ब्लेम ही नहीं करते थे, सिर्फ अपने काम में लगे रहते थे। सो कंपनी का तो बहुत असर पड़ता है, कंपनी फॉर्म्स एंटायर पर्सनालिटी, और जिस कंपनी में आप रहोगे वो आदत डेवलप होना शुरू हो जाएगी। बट उसके लिए भी एक फिल्टर है। अगर आप अपनी आदत को कंट्रोल करना चाहो तो आप किसी भी कंपनी में रह के भी अपनी आदत को कंट्रोल कर सकते हो, बट उसके लिए आपको बहुत हाई लेवल का मेडिटेशन, योगा, क्रिया योगा, इन सब में इन्वॉल्व होना होगा। बट एक यंग जो पीपल है हमारे कंट्री के यूथ, आवर कंट्री इज कॉल्ड द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज वी हैव मैक्सिमम ऑफ द यूथ। जो यूथ है वो क्रिया योगा मेडिटेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए उनको बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना चाहिए कि मेरे साथ वाले लोग कैसा सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह की भाषा यूज कर रहे हैं, क्योंकि जिसके साथ आप रहोगे वैसे आप बन जाओगे। बचपन से एक बात पढ़ते भी आए हैं हम, संगति का असर तो होता ही होता है। तो डेफिनेटली संगति का असर होता ही होता है। आप कितना भी कंट्रोल कर लें, 1% या 2% होना शुरू हो जाएगा, और आप कंट्रोल ना करें तो बहुत जल्दी असर हो जाएगा। और बुरी संगत का असर जल्दी होता है, अच्छी संगत का असर होने में टाइम लगता है। तो That's कंपनी why मेक्स अ डिफरेंस। it is said that a man is known by the company he keeps. यस, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही Our कीप्स। assistant director, training and placement, Aditya Veer Singh ji, has asked one question, जी, and that once Shiv Kheda said that winners don't do different things; they do the things differently. थिंग्स डिफरेंटली, राइट। So, what are the top 5 habits of top leaders of the world? How they are at top positions? सी, आई लव रीडिंग बुक्स। मुझे ऑटोबायोग्राफी पढ़ने का बहुत शौक है। मैंने बिल गेट्स का, स्टीव जॉब्स का, महात्मा गांधी जी का, मैंने जितनी भी ऑटोबायोग्राफी मैं पढ़ सका हूं अब तक मैंने पढ़ी है। मैंने एलन मस्क, जेफ बेजोस, इनके बारे में जाना है, मार्क जुकरबर्ग के बारे में जाना है। तो एक बहुत कॉमन हैबिट है रीडिंग बुक्स। लाइक वारेन बफेट डेली 500 पेजेस और इक्विवेलेंट टू 500 पेजेस के आर्टिकल्स, ब्लॉग्स कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। वारेन बफे ऐसा माना गया है कि अगर वो एक दिन सारी कंपनीज को बंद कर दें, या अगर वो चाहें तो पूरी इकोनॉमी को सिर्फ हाफ एन आवर में शेक कर सकते हैं। देन बिल गेट्स के तो खुद के he reads a book, then he writes a blog over that book, and he has a website named Bill Gates blog something. I'm so sorry, I've forgotten that, but we can still find it on Google. So he again has a habit of reading. Mark Zuckerberg even has read the Bhagavad Gita. Steve Jobs has read Bhagavad Gita. I mean, they all, जो एक सबसे टॉप क्वालिटी है सबकी, रीडिंग द बुक। और जो लोग अपने दोस्त बना लेते हैं बुक्स को, उनको डेफिनेटली आसपास वाले लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और बुक्स एक ऐसी चीज है, अच्छी बुक्स जब आप पढ़ते हैं तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। तो फर्स्ट हैबिट इज रीडिंग बुक। सेकंड हैबिट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन देम, आप लेट्स से मुकेश अंबानी और रतन टाटा, इंडिया की बात करते हैं जब, दे ऑल्सो लव रीडिंग बुक। इनकी एक आदत है, दे नेवर टॉक अबाउट अदर बिजनेसेस। हम लोग क्या करते हैं, अपने दोस्त के साथ बैठ के अपने थर्ड फ्रेंड की क्रिटिसिज्म करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। अभी बहुत सारे लोगों का काम शुरू हो गया है और बहुत सारे लोगों का काम शुरू नहीं हुआ। जिनका काम शुरू नहीं हुआ वो अपने काम के बारे में कम, और जिनका काम शुरू हो गया वो उनके काम के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। सो है क्या, वो जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो दूसरों के बारे में बात नहीं करते, ध्यान नहीं देते। वो चाहे किसी भी कंडीशन में सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे। वो ये करेंगे कि मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मैंने क्या सीखना है। So that's the second important thing every top leader has got. They focus on themselves, not on the others. Third important thing what I feel everybody has got is they all take risk. See, biggest risk is not taking a risk. सबसे बड़ा रिस्क ये है कि रिस्क नहीं लेते। हम रिस्क लेने से डरते हैं और ये हमारा सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो जितने भी लीडर्स हैं, दे अलाउ देमसेल्व्स टू फेल। वो अपने आप को अलाउ कर देते हैं फेल होने के लिए। और जब वो फेल होने के लिए अलाउ करते हैं, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं। क्योंकि हम फेल किस चीज में होंगे, क्योंकि हम बिल्कुल इनोवेटिव कर रहे हैं, लोगों से अलग कर रहे हैं, तभी हमको डर भी लग रहा है कि ये आज तक किसी ने नहीं किया, ये ऐसा हो जाएगा या नहीं होगा। सो दे टेक रिस्क, दे बिकम इनोवेटिव। जेफ बेजोस, किसी भी ने नहीं सोचा था कि हम लैपटॉप पे बुक्स पढ़ रहे होंगे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि किंडल नाम की एक ऑब्जेक्ट होगा, हम बुक्स पढ़ेंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि बुक्स आपके घर पे डिलीवर होंगी। दैट वाज द थॉट ऑफ जेफ बेजोस। फेल भी हो सकता था। Definitely first 1 year he did not work at all, he did not get the money, but still he gained. Then सिर्फ स्टीव जॉब्स को कैलीग्राफी आती थी और कैलीग्राफी से उन्होंने पूरा एप्पल कंप्यूटर बना दिया, फोन्स दे दिए। सो वो भी तो एक इनोवेटिव माइंड था। देन जियो, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, रिलायंस जियो ने जो किया है वो पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट की खपत है आज,
क्योंकि हम डेफिनेटली वी आर हाईली पॉपुलेटेड पीपल। सेकेंड, सबसे चीप डाटा अवेलेबल है in our Singapore organization. Data cost 7 times more than India. We have got the data just because of Reliance Jio. फाइबर कनेक्शन रिलायंस जियो ही लेकर आया इंडिया में, अदरवाइज इतना किसी ने सोचा भी नहीं था कि फाइबर कनेक्शन से हम इंटरनेट चलाएंगे। फाइबर इज अ वे कि हम उस पर कितना भी लोड डाल दे, वो सब लोड अभी तक ले रहा है। सो दे आर इनोवेटिव। वो इनोवेटिव ऐसे नहीं है क्योंकि वो अपने आप को फेल होने के लिए अलाउ करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर इनोवेटिव। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, दे इन्वेस्ट इन लर्निंग। कभी आपने सुना है कि आपका, मेरा या जितने भी आम लोग हैं, हम बजट बनाते हैं, हम बनाते हैं कि 3 साल के बाद एसी लेंगे, 4 साल के बाद गाड़ी लेंगे, 1 साल के बाद इसकी मैरिज आ रही है, ऐसे कपड़े लेंगे, ये बजट है, अगर कोई बीमार हो गया तो इसका है, ये बजट है जब हमें शॉपिंग करनी पड़ी। किसी ने भी लर्निंग बजट नहीं बनाया आज तक। तो लर्निंग बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो टॉप लीडर्स हैं इनका लर्निंग बजट होता है। मैंने ये ट्रिक सीखी 6 इयर्स बिफोर। अब मैं मेरी अर्निंग का 20% लर्निंग पे इन्वेस्ट करता हूं, एंड आई नो दिस, टुडे आई लर्न, टुमारो आई अर्न। सो दे इन्वेस्ट मनी इन लर्निंग। बट हमारे रीजन में या हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में पीपल डोंट स्पेंड इन लर्निंग। वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ मेरा खो देगा। लाइक इट्स अ कोर्स ऑफ 5000 रुपीज। अगर 5000 रुपीज का कोई कोर्स ज्वाइन करता है तो उसको ये डर लगेगा, पता नहीं मैं सीख पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं ये मेरे काम आएगा कि नहीं। एंड लीडर सेज मनी स्पेंट इन द ब्रेन इज नेवर इन द वेन। जब भी आप कुछ सीखोगे ना, वो कभी व्यर्थ तो जाएगा ही नहीं। सी आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, और मेरी मेडिकल, आई मीन स्पीकिंग प्रोफेशन, कहीं पे भी मेरी साइंस यूज नहीं हो रही, बट आई बिलीव मेरी उस मेडिकल एजुकेशन मेरे को पर्सनल लाइफ में बहुत हेल्प कर रही है, बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। आई एम अ पेशेंट ऑफ एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आई एम अ पेशेंट ऑफ साइनोसाइटिस, एंड दिस मेडिकल एजुकेशन हैज हेल्प्ड मी टुडे टू ओवरकम दिस डिजीज आल्सो। Again, I started my career with English speaking, and now in speaking industry, English speaking का कोई रोल ही नहीं है, but still, because of English speaking, people started having a belief in me. So मेरी वो learning जो थी वो आज भी मुझे benefit कर रही है। Again, I have worked with a aviation management companies and Kingfisher even as a aviation management person there. अब वो भी एविएशन कहीं काम नहीं आता, बट दैट्स अ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी तो हम घर पे भी करते हैं। वी नो हम गेस्ट आएगा तो हमें कैसे हॉस्पिटैलिटी में जाना है। अब जब कोई मेरे घर पे गेस्ट आ रहा है, या जब मैं इंटरव्यू की ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ, और आप एक स्टूडेंट को मैं तैयार कर रहा हूँ कि वो इंटरव्यू फेस करे अच्छे से, तो उसने भी तो ये सीखना है, वो सारे एटिकेट सीखने हैं जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सीखते हैं। सो सी, मेरी एविएशन की जरूरत आज मुझे मेरी स्पीकिंग और ट्रेनिंग और कोचिंग प्रोफेशन में पड़ रही है। सो आई बिलीव लर्निंग कभी खराब नहीं जाती, एंड टॉप लीडर्स डेफिनेटली लर्न। मैंने आपको अब तक 4 चीजें बताई सर। फर्स्ट थिंग, वो बुक्स पढ़ते हैं, वो रिस्क लेते हैं, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते, अपने ऊपर फोकस करते हैं, एंड दे इन्वेस्ट मनी इन लर्निंग। अगर इन 4 चीजों को मिला लें हम, तो देयर कम्स अ टॉप लीडर। और लास्ट, आपने पूछा था 5 टॉप हैबिट्स, सो लास्ट जो हैबिट होती है टॉप लीडर्स की, वो अपनी कंपनी के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ वैसे ही रहते हैं जैसे वो फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं। अगर वो गलती कर देते हैं खुद, तब वो अपने आप को माफ करते हैं, ऐसे ही वो अपनी टीम को भी माफ करते हैं। दे लर्न टू बेसिकली फॉरगिव, और टॉप लीडर की क्वालिटी है माफ करना। ये हैबिट है, माफ करना भी एक आदत है सर। और माफ करना और खुश रहना जिसकी आदत है, तो वो तो हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। सो जिसको माफ करना आ गया, वो दुनिया का सबसे खुश नसीब और सबसे खुश आदमी होगा। So these are the 5 habits I think I have told you, sir. Yes. So I think our students may learn that if we also adopt any of these 5 habits, we can also become successful people. So Right. now, Pankaj, we are coming on a very important question of today's program, and that question has been asked by a number of students of our university also, that how we can develop a habit. That's a wonderful question, sir. Wonderful. I really appreciate this question. Have you heard the name of a surgeon, Maxwell Martz? Maxwell Martz is a surgeon basically. Was the surgeon. इन्होंने वो 21 days वाली थ्योरी बनाई थी। अब उन्होंने बताया कि 21 दिन में आदत कैसे बनती है। He is the plastic surgery surgeon. अब इनका काम क्या होता है? न्यू फेस देना, न्यू नोज देना, न्यू ईयर्स देना, न्यू स्किन कॉम्प्लेक्शन देना। माइकल जैक्सन के साथ भी इन्होंने काम किया, बिकॉज माइकल जैक्सन हैड अंडरगोन द सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरीज वेरियस टाइम्स।
अब इन्होंने देखा कि 21 दिन लगते हैं किसी भी आदमी को अपना नया चेहरा अडॉप्ट करने में। 21 days a person takes to adopt a new face. 21 days person takes to adopt a new leg. क्योंकि अगर किसी की लेग चली गई और उसको प्रोस्थेटिक लेग दे देते हैं तो उसको लगभग 21 दिन लगते हैं वो नई लेग का हैबिचुअल हो जाए। अगर आप किसी को नए घर में शिफ्ट कर देते हैं और उस घर में बिल्कुल ही अजीब गरीब कलर्स हैं और 21 दिन आप उस घर में रहें तो आपको वो सारे कलर पसंद आने शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर 21 दिन कलर्स को पसंद करने में, 21 दिन नई लेग को अडॉप्ट करने में और 21 दिन अपने नए फेस को अडॉप्ट करने में लगते हैं, तो इसका मतलब 21 दिन की जो ये थ्योरी है, हम इसको न्यू हैबिट फॉर्मेशन के लिए डाल सकते हैं। सो अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, सुबह 9 बजे उठते हैं और वो सोचते हैं कल से मैं 6 बजे उठूंगा और 21 दिन तक मैं 6 बजे उठूंगा तो मैं मेरी आदत बन जाएगी, बट दैट इज रॉन्ग। हैबिट का एक और रूल है, हैबिट कभी भी इंस्टेंटली चेंज नहीं होती। आप ऐसा नहीं है कि 9 की बजाय 6 बजे उठोगे, आपकी पूरा दिन बॉडी टूटती रहेगी, आप रेस्टलेस रहोगे, आप बॉडी से अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो अब इसको मैं कहता हूँ 5 मिनट्स हैबिट। आप क्या करो, फर्स्ट डे पर सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठो और आप यू वुड बी सरप्राइज्ड, आपने कोई भी मेहनत नहीं की जल्दी उठने के लिए। अब 21 दिन तक डेली आपने शुरू, पहले 3 दिन 5 मिनट 15 मिनट कम हो गए। अब थोड़ा थोड़ा बॉडी को साइन मिलना शुरू हो गया कि मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज हो रही है। फिर नेक्स्ट 3 डेज 10 मिनट। अब नेक्स्ट 3 डे 10 मिनट मतलब पहले 6 दिन में आपके 45 मिनट ही कम होंगे। इस तरीके से 21 दिन में आप 3 घंटे कम करने हैं आपने। अब नेक्स्ट 21 डेज है, पहले जो 21 डेज का पीरियड था वो था ब्रेकिंग द हैबिट्स। अब नेक्स्ट 21 डेज का पीरियड है फॉर्मिंग द हैबिट। अब नेक्स्ट 21 डेज आप 6 o'clock रेगुलरली उठो। अब आपकी आदत फॉर्म हो जाती है। इसमें अभी थर्ड फेज आता है 21 डेज का, जब कहते हैं हम नाउ हैबिट हैज बीन ब्रोकन, new habit has been learned, or the habit which has been formed in the second phase of 21 days that has to be cemented. जैसे हम दीवार खड़ी करते हैं तो उसको सीमेंटेड कर देते हैं, प्लास्टर कर देते हैं ताकि वो दीवार जल्दी से ना टूटे। तो इसलिए नेक्स्ट 21 डेज का जो पीरियड होता है उस हैबिट को स्ट्रेंथ करने का होता है, फोर्टिफाई करने का होता है। सो इट बेसिकली टेक्स द पीरियड ऑफ 63 days, 21 days to break a habit, 21 days to form a habit, 21 days to basically adopt that habit or to cement that habit. But rule is 5 minutes habit. आपको जो भी कोई नई आदत डेवलप करनी है वो धीरे धीरे करनी है, इंस्टेंटली नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि 9 o'clock उठते हो तो 6 o'clock उठोगे, नहीं। 9 उठते हो तो 8:55, देन 8:50, 8:45, इस तरीके से आप धीरे धीरे कम करो। यू वुड बी सरप्राइज कि आपकी आदत चेंज होगी। जैसे बुक रीडिंग की हैबिट मुझे नहीं थी एंड ये 2011-12 आई स्टार्टेड रीडिंग। शुरू में मुझे लगता था कि मैं एक दिन में पूरी बुक पढ़ दूं और मैं बोर हो गया 3-4-5 दिन में, मैं बुक्स नहीं पढ़ पाया। फिर मैंने आदत बनाई कि मुझे बुक्स डेली सिर्फ 10 मिनट पढ़नी है। अब 10 मिनट मैंने पहले 3 दिन 10 मिनट ही बुक पढ़ी, मेरा ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप हुआ। चौथे दिन मैंने बुक पढ़नी शुरू की, 15 मिनट एंड 20 मिनट। आज मैं 2 घंटा बैठ के आराम से बुक पढ़ता हूँ और उस 2 घंटे में एक बुक फिनिश भी कर देता हूँ। सो वो हैबिट टेक्स टाइम, डेफिनेटली हैबिट टेक्स टाइम। और उसके साथ साथ हमको सीखना पड़ेगा कि धीरे धीरे आदतें डेवलप होती हैं और धीरे धीरे चेंज होती हैं, इंस्टेंटली चेंज नहीं होती। सो दिस इज द वे टू फॉर्म एनी न्यू हैबिट एंड टू ब्रेक एनी ओल्ड हैबिट। क्योंकि नई आदत उसी जगह बनेगी जिस जगह पे आपकी पुरानी आदतें पड़ी हैं। तो हमको पुरानी आदत को रिमूव करना है, नई आदत को डेवलप करना है। वी नीड टू रिप्लेस द हैबिट। That how we can basically keep good habits in continuation, and one how to remove negative habits. So I think there are three portions. One is to create new good habits, second is to continue the good habits, and third one is to break the negative habits. So we'll start in reverse order. First we start breaking the habit. Breaking means replacing the habit. तो मैंने ये फॉर्मूला पहले ही बता दिया आपको। फर्स्ट 21 days breaking and replacing, this happens together. Next 21 days it happens to form the habit, and next 21 days to cement the habit, to fortify the habit. तो जैसे आई थिंक नित्या's क्वेश्चन वाज देयर कि हम अच्छी आदतों को कंटिन्यू कैसे करें। अच्छी आदत अगर आपने 63 डेज तक कर ली तो आप अब उसको भूल भी जाओगे तब भी वो कंटिन्यू रहेंगी। सिर्फ आपको अपनी कंपनी पे ध्यान रखना कि आपकी कंपनी क्या है। अगर आप कंपनी चेंज कर लोगे ना तो अगले ही 60 दिन में आदत भी चेंज हो जाएगी। तो कंपनी आप अच्छी रखो और आदत को फॉर्म करने के लिए 63 डेज स्पेंड करो। 63 डेज स्पेंड करने के बाद आदत तोड़नी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है।
Don't take it just 21 days, take it 63 days. Can you throw some light on the issue that what should be the morning habit for the success? Is there any concept of morning habit? Definitely. इसके ऊपर तो my senior trainer, coach, speaker Robin Sharma has authored a book 5 a.m. Club. See, I somewhere don't agree with 5 a.m. Club. Reason, अगर मैं रात को 12 बजे तक काम कर रहा हूँ, मेरी काम ही ऐसा है कि मेरे को रात को 12 बजे तक करना पड़ता है, तो मैं डेफिनेटली सुबह 5 बजे नहीं उठूंगा, तो मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक अलग होगी. बट मैं कहता हूं कि किसी भी समय मर्जी उठो. अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेक अ हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली. उसका एक साइंटिफिक रीजन है. हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है, और जब हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है तो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक वो ऐसे सर्कल में होती है कि वाइब्स अच्छी प्रोड्यूस होती है. उस समय पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं. कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई रहता है. मैग्नेटिक फोर्स है एक जो कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा देती है, जो पीस को रियलाइज. कितना भी शोर हो 4 से 6 के बीच में, पीस फिर भी मिलेगी आपको. अगर आप जल्दी उठना शुरू कर देते हैं, नॉट 4 o'clock, 5 o'clock, तो उसको आप 5 to 6 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो. पहले 15 मिनट आप स्ट्रेच करोगे बॉडी को, अंगड़ाई लोगे, पानी पियोगे. नेक्स्ट 15 मिनट में आप फ्रेश होगे, ब्रश करोगे. जो नेक्स्ट 15 मिनट है उसमें आपको योगा करना चाहिए, और नेक्स्ट 15 मिनट में आपको पूरा दिन में आप क्या करने वाले हो. हम जनरली अपने दिन में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बट अगर हम मॉर्निंग में 15 मिनट स्पेंड कर लें कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू माय ऑल थ्रू द डे, और उसको आईज क्लोज करके विजुलाइज कर लें कि मैं 6 o'clock ये कर रहा हूँ, फिर 7 o'clock ये कर रहा हूँ. सब करना विजुलाइज आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में. आपको 5:45 से 6 o'clock तक विजुलाइज करना है कि पूरा दिन क्या करना है, और वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करना है. अगर आप वो चीज विजुलाइज कर लेते हैं तो आपका दिन बहुत एनर्जेटिक जाएगा, और आप अपना आधा दिन तो तभी खत्म कर चुके होगे जब तक आधी दुनिया जो है उठी भी नहीं होगी. सो डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी गुड वाइब. बट इसमें प्रॉब्लम है एक. द प्रॉब्लम इज इट्स हार्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. एक तो ये है कि मॉर्निंग में हमारा स्केड्यूल क्या होना चाहिए. एक ये क्वेश्चन आई वुड से सर कि बच्चों को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, ऑडियंस को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सुबह जल्दी उठें कैसे. अगर ये पता लग जाए उठे कैसे, तो आदत तो अपने आप सुधर जाएगी, क्योंकि सुबह उठ के करोगे भी क्या, किसी को फोन करके तो बात कर नहीं सकते. तो डेफिनेटली अच्छी आदतें तो बनेंगी ही बनेंगी जब आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर देते हो. सो आई एम गोइंग टू टेल यू साइंटिफिक अदरवाइज मैनिपुलेटिव ट्रिक. साइंटिफिक ट्रिक बाद में बताता हूं, मैनिपुलेटिव पहले बताता हूं, बिकॉज वी आर ऑल मैनिपुलेटिव पीपल. सोने से पहले अच्छे से यूरिनेशन करो, अपना जो यूरिन ब्लैडर है खाली करो, और 1 गिलास पानी पी के सो जाओ. और जो मोबाइल फोन है उसको आप अलार्म क्लॉक पे लगाओ. अभी तक आप सोच रहे हो कि अलार्म क्लॉक तो नहीं काम आते सर. मोबाइल फोन को फिर भी अलार्म क्लॉक पे लगाओ, और अपने बेड से दूर रखो. इतना दूर रखो कि आपको उठ के उसके पास मोबाइल फोन को बंद करने के लिए जाना ही पड़ेगा. सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है उठने की. यूरिन जो ब्लैडर है वो उसको फिल करने में लगता है 6 to 7 hours. अब आप 1 गिलास पानी पी के सोओगे तो वो फिल हो जाएगा अगले 6 to 7 hours में. आपको उठना तो पड़ेगा ही, और उसी समय आपका मोबाइल फोन बज रहा है, रिंग हो रहा है, अलार्म क्लॉक है, और आपको उसके लिए अपने रूम से बाहर जाना पड़ेगा उसको बंद करने के लिए. इतनी देर जो आदमी बेड से दूर रह गया ना, वो तो उठ ही जाएगा. दिस इज मैनिपुलेटिव थिंग. साइंटिफिक है, जब आपको डेट पे जाना है मॉर्निंग 4 o'clock, आपकी गर्लफ्रेंड ने, आपके बॉयफ्रेंड ने कह दिया मैं साथ वाले पार्क में आऊंगा, सुबह इकट्ठे घूमेंगे, और 4 बजे आएंगे क्योंकि 4 बजे कोई और होता नहीं. आपकी जाग खुलेगी क्या? नहीं खुलेगी. डेफिनेटली खुलेगी. क्यों खुलेगी? क्योंकि आपके पास उठ के काम करने का एक पर्पस है. अगर आपके पास वो पर्पस होता है तब ऑटोमेटिकली उठा जाता है. जैसे बचपन में स्कूल जाने के लिए तो जाग नहीं खुलती थी, बट जिस दिन मम्मी पापा को बाहर घूमने जाना है, वृंदावन जाना है, या गोवा जाना है, या कहीं पर भी जाना है, या फर्स्ट टाइम आपको प्लेन में बैठना है, तो कितनी एक्साइटमेंट होगी. फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठना है, चाहे आप 22 साल के हो, जब पहली बार आप प्लेन में बैठने वाले हैं, तो एक अलग से एक्साइटमेंट रहती है. यस, आई एम गोइंग टू फ्लाई. तो फ्लाइंग इज अ ड्रीम ऑफ एवरीवन. तो आपको उठना तो चाहिए 6 बजे अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल ऑफ फ्लाइट, बट आप उठोगे 4 बजे, क्योंकि आपके पास पर्पस है. उठने का पर्पस है. जब हम रात को सोने से पहले एक पर्पस के साथ सोते हैं तो जाग खुलेगी ही खुलेगी. अगर पर्पस है तो कोई टेक्निक की जरूरत नहीं है. सिर्फ रात को सोने से पहले विजुलाइज करो कि उठने के बाद मुझे ये काम करना है, यू विल वेक अप. अब आप एक तकियानुसी बात है, शायद आप उस पर बिलीव ना करो, बिकॉज माई वाइफ डज नॉट बिलीव. मैं सोने से पहले अपने पिल्लो को और अपने सराउंडिंग को कह के सोता हूँ,
I will wake up at 6 tomorrow in the morning. सिर्फ कह के सोना है मुझे, क्योंकि जब मैं कह के सोऊंगा तो मैं मेरे ब्रेन को मैसेज दे रहा हूँ, सबकॉन्शियस ब्रेन को, वेक अप एट 6, और सबकॉन्शियस ब्रेन अब अपने काम पे लग जाएगा। वो 6 बजे का इंतजार करेगा और 6 बजे मुझे उठा देगा। अंडरस्टैंड? ये ट्रिक कुछ लोगों को तुक्के लगती है, बट ये ट्रुथ है। अगर आप बुक पढ़ो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो आपको पता लग जाएगा। आप बुक पढ़ो स्टार्ट विद व्हाई ऑफ द साइमन सिनेक, तो भी आपको पता लग जाएगा कि ये पर्पस की जो मैं बात कर रहा हूँ वो कितना इंपॉर्टेंट है। सो आई बिलीव आई हैव टोल्ड यू हाउ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर पर्पस नहीं है तो मैनिपुलेटिव ट्रिक यूज करना, यू विल वेक अप, और जल्दी उठ जाओगे ना, आदतें ऑटोमेटिकली अच्छी हो ही जाती हैं, बिकॉज यू हैव नथिंग टू डू इन द मॉर्निंग। When we follow some routine or follow some habit, then we also get bored out of that. So what are the approaches that could be taken care so that we are not basically getting bored due to these habits? दैट इज नॉट योर हैबिट, दैट इज अ रूटीन। हम अपनी आदतों से कभी बोर नहीं होते, क्योंकि जो आदत हमारी, हम जिस चीज के लिए आदी हो गए ना, एडिक्टेड हो गए, तो हम बोर होंगे नहीं। पीपल आर नेवर बोर्ड ऑफ स्मोकिंग सिगरेट, पीपल आर नेवर बोर्ड ऑफ what the wrong habit they have, what the good habit they have. They are bored of monotonous job sometimes, monotonous task. तो आपका ये जो वर्ड है हैबिट का, वो मैं रिमूव करना चाहूंगा और कहूंगा कि आप अपने रूटीन से बोर हो जाते हो, क्योंकि वो रूटीन आपके अकॉर्डिंग नहीं है और आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे। आई रिमेम्बर अबाउट रजनीकांत। आप में से बहुत सारे लोग रजनीकांत को जानते होंगे, और मेरे ख्याल से उनसे बड़ा स्टार हमारे इंडिया में नहीं है। रजनीकांत जी वॉज अ कंडक्टर। अब उनकी बस में ही लोग चढ़ना चाहते थे, जितने भी पैसेंजर थे वो रजनीकांत की बस की वेट करते थे कि जिस बस में रजनीकांत कंडक्टर है उस बस में जाऊंगा। अब पीपल गॉट लाइक, अगर कोई नया आदमी होगा तो सरप्राइज होगा, ऐसा क्या है उस बस में यार, ये भी उसी रूट पे जा रही है, ये भी उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचा रही है, तो रजनीकांत की बस पे क्यों जाना है। अब उसमें एक चीज थी, रजनीकांत जी हर रोज डेली अलग तरीके से टिकट काट के देते थे, और आपने, ही इज नोन फॉर हिज स्टाइल्स, वो हर रोज डेली नए स्टाइल में टिकट देते थे। तो एक बार किसी मूवी के डायरेक्टर ने उनको देखा कि अलग स्टाइल से टिकट दे रहे हैं और लोग उनके फैन हैं, तो वो मूवी का डायरेक्टर 3 दिन लगातार उसी बस में ट्रेवल किया टू सी रजनीकांत स्टाइल। और उन्होंने रजनीकांत को अप्रोच किया, तुम्हारी फैन फ्लोइंग बहुत है बीइंग अ कंडक्टर, अगर तुम हीरो बन जाओगे तो फैन फ्लोइंग और बढ़ जाएगी। और बाकी तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि तुम हर रोज अलग स्टाइल में टिकट क्यों देते हो। बोले देखो भाई साहब, मैं कंडक्टर तो बनना चाहता नहीं था, मैं कंडक्टर बन गया। मैं तो थिएटर आर्टिस्ट था पहले, और अभी भी मैं कर रहा हूँ थिएटर आर्टिस्ट वाला काम, थोड़ा बहुत करता हूँ। और ये कंडक्टर मुझे, आप ये सोचो कि बना दिया गया सरकमस्टांसिस ने, तो मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। मैं हर रोज अपने इसी काम को एक नया स्टाइल दे देता हूँ। और क्योंकि मैं थिएटर आर्टिस्ट भी स्टाइल के कारण बनना चाहता हूँ, एक्टिंग के कारण बनना चाहता हूँ, तो मैं एक्टिंग करके ही टिकट्स देता हूँ। लोग मुझे पसंद करते हैं, इसलिए मुझे सैलरी भी अच्छी मिलती है, और लोगों का प्यार भी बहुत ज्यादा मिलता है। टू अंडरस्टैंड साक्षी, मैंने बताया आपका जो रूटीन है जिससे आप बोर हो रहे हैं, आप उसको अलग स्टाइल में करना शुरू कर दो। जब जब भी आप अपना खुद का स्टाइल ऐड कर देते हो किसी भी रूटीन को, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम अपनी इच्छा से नहीं करते, करने पड़ते हैं, बट अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसमें कोई स्टाइल ऐड कर दो। लर्न फ्रॉम रजनीकांत जी, अपना स्टाइल ऐड कर दोगे तो वो चीजें आपको पसंद आनी शुरू हो जाएंगी। अब बहुत सारे टीचर है सेम सब्जेक्ट पढ़ा पढ़ा के बोर हो जाते हैं। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। What happened in 2005? I started teaching English. Then I got bored in 7, 8, 9. मैंने कहा यार this is being very bored. Like what do I do? What do I do? मैंने वर्कशॉप बनाई एक, learn English through the songs. Learn English through songs. And I started singing songs in English, Hindi song in English, and started teaching vocabulary. अब मुझे मजा आने लगा, मुझे नहीं, स्टूडेंट्स को भी बहुत मजा आने लगा। You understand my point? People really enjoy their own style देन द अदर स्टाइल। अब तक आप किसी और का स्टाइल अडॉप्ट करके काम कर रहे हो, उसी काम को अपने स्टाइल में करना शुरू कर दो, यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट। कोई भी चीज मोनोटोनस तो हो ही नहीं सकती जब तक हम उसको मोनोटोनस बनाते नहीं है। Pankaj, earlier you mentioned about various habits of great people or successful people, and out of those habits, one is reading books. So राइट now सर। we come on some books which are available in the market, because some students are fond of reading books. They have already initiated that habit. They are having this habit already. So राइट can सर। you suggest some good books which are related to how to develop a good habit, or how you can leave or break your existing bad habit? राइट,
I remember one book named Atomic Habits. Atomic Habits is a wonderful book. ये बुक मुझे प्रेफर की थी लास्ट ईयर जुलाई में मिस्टर क्रूबा शंकर इज अ प्रेसिडेंट ऑफ आवर प्रोफेशनल स्पीकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया. वो बुक मैंने पढ़ी एंड दिस इज अल्टीमेट बुक ऑन द हैबिट्स, एटॉमिक हैबिट्स. वंडरफुल बुक. आई वुड definitely recommend you people to read a book, Atomic Habits. Wonderful book, and I'm sure you would love it. And once you read it, definitely share your learning with me on my social media. Otherwise, you can share with the Pratap sir, and he'll share with me on the WhatsApp. That's a wonderful book. Then I would suggest a book. I love books. The book with me is The Power of the Subconscious Mind. अगर आपको आदत बनानी है और आदत छोड़नी है, this book is going to help you a lot. The Power of Subconscious Mind. एक और बुक है जो मैं जनरली कहता हूं कि इसको पढ़ लोगे तो कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, भगवत गीता. श्रीमद् भगवत गीता इज द मोस्ट पावरफुल बुक. इसको पढ़ते हो तो आदतें ऑटोमेटिकली अच्छी बन जाएंगी. There are a lot of books. I have read around more than 2000 different titles of the book, and I think this book is the best book. अगर आप पर्टिकुलरली हैबिट पे बुक पढ़ रहे हो तो एटॉमिक हैबिट्स और उसके साथ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. अगर आप बुक हैबिट डेवलप कर रहे हो, रीडिंग हैबिट डेवलप कर रहे हो और जर्नल बुक्स पूछते हो कि कौन सी पढ़ें, तो अच्छे कम्युनिकेशन के लिए भी दिस बुक इज गुड, द श्रीमद् भगवत गीता. मैनेजमेंट के लिए भी दिस बुक इज गुड, श्रीमद् भगवत गीता. लीडरशिप के लिए भी दिस बुक इज गुड, श्रीमद् भगवत गीता. ये वो बुक है जो आपको लाइफ का सब कुछ सिखा देगी. सो आई वुड रिकमेंड यू दिस बुक. मैंने अभी आपको एक बुक बोली थी, स्टार्ट विद व्हाई, साइमन सिनेक की. पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ने के बाद, देखो बुक का भी एक सीरीज होना चाहिए कि कौन सी कब बुक पढ़नी है. आप ये वाली बुक पढ़ लेना, स्टार्ट विद व्हाई. साइमन सिनेक की बुक है और ये बुक एक सर्कल से जानी जाती है. आई विल टेल यू द सर्कल प्रेजेंट हियर. साइमन सिनेक, अगर आप गूगल पे जाके साइमन सिनेक सर्कल लिखते हो तो वो सर्कल बहुत ज्यादा पॉपुलर है. कुछ इस तरीके से बना होता है. लेट मी शो यू. दिस इज अ सर्कल, इफ यू कैन वॉच इट. ये सर्कल अगर आपको समझ लिया आपने इस बुक में से, स्टार्ट विद व्हाई में से, स्टार्ट विद व्हाई जो पर्पस की मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, एक तो वो आपको पता लग जाएगा कि व्हाट इज द रीजन टू हैव अ पर्पस, और पर्पस हमको कैसे जल्दी उठा देगा लाइफ में. जितने भी आप काम कर रहे हो, अगर उसके लिए आपके पास पर्पस हो गया तो लाइफ में किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो दिस बुक इज अगेन द वंडरफुल बुक. अब मैं आपको सीरीज बताता हूँ कैसे पढ़ना शुरू करो. आप सबसे पहली बुक पढ़ो स्टार्ट विद व्हाई. अगर ये आपको इंटरेस्ट नहीं देती तो बुक पढ़ो आप द अल्केमिस्ट. ये स्टोरी है, ये आपको पसंद आ जाएगी, द अल्केमिस्ट. अल्केमिस्ट के बाद पढ़ो द पावर ऑफ व्हाई. पावर ऑफ व्हाई के बाद पढ़ो आप बुक पावर ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन. इसके बाद पढ़ो आप एटॉमिक हैबिट्स. एटॉमिक हैबिट्स को शुरू में मत पढ़ना, बोर हो जाओगे. अगर आपको बुक्स बोरिंग लगती हैं तो सुधा मूर्ति की एक बुक है 3000 स्टिचेस. दिस इज वंडरफुल बुक, वंडरफुल बुक. मीन 3000 lessons she is teaching in a one book. और सुधा मूर्ति इज अ वंडरफुल पर्सनालिटी. मुझे एक बार चांस मिला था उनको देखने का, लाइव देखने का. एक ऐसा ओरा कैरी करती है वो, जस्ट अमेजिंग. तो आई वुड रिकमेंड, अगर बुक्स इंटरेस्टेड नहीं लग रही तो ये वाली इस बुक से शुरू करो, डेफिनेटली इंटरेस्टेड लगेंगी क्योंकि सारी उनकी लाइफ स्टोरीज हैं खुद की. और फिर जो मैंने आपको अभी सीरीज बताई, स्टार्ट विद दैट. Pankaj ji, Charles Duhigg has also authored a book, Power of Habits, I think. Yes sir, Power of Habits. Some loop of habit. That book also I have read that, but अगर मैं उस Power of Habits के ऊपर बात करूं तो best book I love of habit is Atomic Habits. Atomic Habits, yes. So that's a wonderful book. Although Power of Habits I myself have read it, और मेरे सेल्फ में पढ़ी है वो बुक, and I sometimes do read it. बट उसके बाद जब मैंने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी तो मुझे एटॉमिक हैबिट्स उससे बहुत ज्यादा बेहतर लगी और बहुत इजी लगी समझने में और इम्प्लीमेंट करने में. I hope students will be getting these books and they will read the books to be master on their habits. Pankaj ji, tell us about the way to implement in our life from what we have motivated. This motivation basically usually ends in 2-3 days. How can we stay inspired for entire life? बट आपने इसमें ना एक चीज गलत कही है कि मोटिवेशन 2-3 दिन रहता है. ये तो बहुत ज्यादा कह दिया आपने. 2-3 घंटे रहता है. और आजकल तो हम इतनी आदत पड़ चुकी है फेसबुक पे मोटिवेशनल वीडियो देखने की, ये 2-3 मिनट रहता है. आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, रियलाइज किया होगा, व्हेनेवर यू वॉच मोटिवेशनल वीडियो, थोड़ी देर के लिए तो यस आई एम गोइंग टू डू दिस, यस टुमारो आई विल वेक अप अर्ली, दिस दैट एंड ऑल.
आज मेरे सेशन के दौरान भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कल से ये करना शुरू कर देना, बट वो अभी आप सोच रहे हो, जैसे ही मैं बोलना बंद करूंगा तो आपकी सोच 50% बदल जाएगी, और जैसे ही आप अपनी चेयर से उठोगे तो 30% और बदल जाएगी। अब रही 20% की बात, वो 20% आप चेयर से उठ के अपने रूम से बाहर जाओगे, उसमें से 10% चली जाएगी। जब तक आप अपने घर पहुंचोगे या किसी से बात करोगे, 100% मोटिवेशन गोन, क्योंकि हमने एक्सेस में वीडियोस देख ली हैं। अब मोटिवेशन नाम की, बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम टेलिंग, मोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं होती। मोटिवेशन आता है अंदर से। अंदर से कैसे आता है अभी समझो। मैं ये चीज पहले भी बता चुका हूँ आज वाली सेशन में, अब दोबारा बता रहा हूँ। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी पहले भी बता चुका हूँ मोटिवेशन के लिए, एंड आई वुड अगेन रिपीट इट। पहले मैंने किसी और तरीके से बताया था, मैंने उसको पर्पस का नाम दिया था, अभी भी मैं उसी से चलूंगा, बट आई गिव एन एग्जांपल। कनिका, आप कितना तेज भाग लेते हो? शायद आप अपनी फास्टेस्ट स्पीड में 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट भाग पाओ, और आप डेली रनिंग करते हो तो आप 30 मिनट भाग पाओगे, क्योंकि वो आपकी एक आदत बन चुकी है 30 मिनट भागने की। बट एक उस पर्टिकुलर हैबिट से ज्यादा भागने के लिए आपको एक्सट्रीम मोटिवेशन की जरूरत होती है, ऐसा ही ना? 3 मिनट से ज्यादा भागने के लिए एक्सट्रीम मोटिवेशन की जरूरत है। बट लेट्स इमेजिन यू आर एन इंडियन विलेज जहाँ पे बहुत फ्यूरियस डॉग है, बहुत ज्यादा फ्यूरियस डॉग है, और आप विलेज में चल रहे हो, पैदल चल रहे हो, यू आर न्यू टू दैट प्लेस, डॉग स्टार्ट चेजिंग यू, वो भाग करके भौंककर और आपके पीछे लग जाते हैं, बहुत बुरी तरह से पीछे लग जाते हैं। क्या आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है आपको ये कहने के लिए, कनिका भाग नहीं तो काट जाएंगे, कनिका भाग नहीं तो काट जाएंगे? नहीं, आपको किसी मोटिवेशन स्पीकर की जरूरत नहीं है, आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और ये मोटिवेशन अगर वो डॉग आपके पीछे पड़े रहे, तब तक आप मोटिवेटेड रहोगे भागने के लिए, तब तक। रीजन है इसका, क्योंकि आपके पास भागने का पर्पस है, आपके पास कारण है भागने का, और आप इसलिए नहीं भाग रहे कि डॉग पीछे पड़े हैं, आप भाग रहे हो क्योंकि आप उनसे बचना चाहते हो। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? आपको भागने के बाद क्या मिलेगा वो आपको पता है। इसको मैं कहता हूं बिगिन विद द एंड। जब भी आप कोई काम शुरू करो तो उसका एंड विजुअलाइज कर लो, क्योंकि हम काम करने के लिए काम नहीं कर रहे, उस काम के रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं। वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, बट फल दिमाग में रख के ही तो हम कर्म करेंगे। दिमाग में होना चाहिए, इच्छा मत करो उसके, बट विजुअलाइज तो कर लो कि ये काम करने के बाद मेरा फल ये वाला होगा। अगर अगर अब वो फल आपको विजुअलाइज्ड है, जैसे आप डॉग से भाग रहे हो, तो आपको उसका फल विजुअलाइज्ड है कि मैं बच जाऊंगी, मेरे को पेन नहीं होगा, मैं रिलैक्स्ड हो जाऊंगी एक बार इससे बच गई तो, इसलिए आप भाग रहे हो। एक दूसरा आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं आपको एकदम से कह दूं कि मुझे इवनिंग तक 5 लाख रुपीज चाहिए, या आपकी जो भी लिमिट है, लेट्स से आप 50 लाख इकट्ठा कर सकते हो, और मैं कह देता हूं कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, आप मुझे तुरंत मना कर दोगे? इतने पैसे तो नहीं होंगे सर। और मैं कहता हूं कि आपके लिए एक वंडरफुल कोर्स है, उसकी फीस है 80,000 रुपए। आप अपने पापा को कहते हो 80,000 रुपीज दे दो, पापा कहेंगे कोई जरूरत नहीं है कोर्स करने की, 100 बार पूछे कहेंगे, और कहेंगे पैसे ही नहीं है, 80,000 अरेंज ही नहीं हो सकते, या 8 लाख अरेंज ही नहीं हो सकते। ऐसा होता है? डेफिनेटली होता है। ये तो मैं थाउजेंड्स की बात कर रहा हूँ, बहुत जो एफिशिएंट फैमिली होती हैं, कई बार 1,500 रुपए अरेंज करना मुश्किल होता है, डेफिनेटली। अब खुदा न खास्ता फैमिली में किसी को मेडिकल इशू हो जाए, और डॉक्टर कहता है जाते ही ऑपरेशन करना है, मेजर ऑपरेशन है, और आपकी लिमिट जितना पैसा आप इकट्ठा कर पाते हो उस लिमिट से 10 गुना बता देता है। जैसे कि मैं 1 लाख कर पाता हूं, तो मेरे को कहता है पंकज 10 लाख रुपीज आई नीड बाय द इवनिंग, 10 लाख रुपए चाहिए शाम से पहले, और 20 यूनिट ब्लड चाहिए ओ नेगेटिव। मेरे दिमाग में आता है टीचर ने बताया था ओ नेगेटिव ब्लड तो नहीं मिलता भाई आसानी से, और मैं कहता हूँ सर ओ नेगेटिव नहीं मिलता, पैसे नहीं है इतने मेरे पास, मैं नहीं कर सकता, जाने दो उसको। वो है कौन? या तो मेरा बेटा है, या मेरा भाई है, या मेरी माँ है, या मेरी बहन है, या मेरी वाइफ है। क्या मैं डॉक्टर को ये कहूंगा जाने दो? क्या आप कहोगे जाने दो? नहीं। क्या आप बचा लोगे अपने उस रिलेटिव को? डेफिनेटली आप बचा लोगे। आप अपनी लिमिट्स को एकदम से बढ़ा दोगे। जो आदमी 1 लाख नहीं इकट्ठा कर पा रहा था, आप 10 लाख इकट्ठे कर लोगे। आपको नहीं पता ओ नेगेटिव ब्लड कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, नहीं पता, बट आपको ये पता है कि क्यों मिलेगा। तो इसलिए आप सारे सोर्सेज अपना लोगे, ओ नेगेटिव ब्लड भी इकट्ठा कर लोगे, 10 लाख रुपीज भी इकट्ठा कर लोगे। और इसके लिए आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है ये कहने के लिए कनिका इकट्ठे कर नहीं तो तेरी बहन गई। नहीं 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 नहीं, ये अंदर से आवाज आएगी।
तो मोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं है। जब आपके पास पर्पस है ना किसी को काम करने का, तो यू डोंट रिक्वायर एनी मोटिवेशन। और जब पर्पस नहीं है तो कोई कितना मोटिवेट कर ले, वो 2 मिनट 3 मिनट, या आपके केस में 2-3 दिन मोटिवेशन चलेगा फिर चला जाएगा। हाईली मोटिवेटेड रहने के लिए आपको पर्पस रखना जरूरी है। So it means purpose is the primary requirement, we can say. राइट सर, तभी मैंने आपको कहा कि इन बच्चों को बुक पढ़नी चाहिए, स्टार्ट विद व्हाई ऑफ द साइमन सिनेक। Why is required? Why is very important. Pankaj ji, sir, it is human nature that we get bad habits very quickly, not the good habits. So how to overcome? And in addition to that, I would also ask one thing, like some students are basically, you can say, addicted to the drugs also. That should not be there, but there are some students. So that is also one sort of a very extremely negative habit. So how we can basically step by step overcome such type of negative habits? राइट, अब मैं इसमें 2 क्वेश्चन लेके चलता हूँ। एक तो बैड हैबिट हम जल्दी क्यों अडॉप्ट कर लेते हैं, एक जब हम बैड हैबिट अडॉप्ट कर लेते हैं तो उनको ब्रेक कैसे करना है, और थर्ड क्वेश्चन आ सकता है ड्रग्स वाला। सी ड्रग्स आदतों से अलग सिनेरियो है, आई वुड डिफाइन इट कंप्लीटली। अब जब कोई आपको आदत हो जाती है, कोई भी अच्छी बुरी कोई भी आदत, वो आदत आपके ब्रेन को प्लीज करती है, खुशी देती है, और उस खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी की जान तक ले सकते हैं उस खुशी के लिए। आपने नठारी का केस सुना होगा, नठारी और कोठारी इन ग्रेटर नोएडा। ही यूज्ड टू अडॉप्ट स्मॉल किड्स, चॉप देम, बॉयल देम एंड ईट देम, क्योंकि उसको ना ये फीलिंग आने लगी थी कि ये चीज मुझे खुशी देगी। वो अपने ब्रेन को प्लीज करने के लिए किसी भी हद तक जाने लग गया। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है उसके बाद। ड्रग्स वाले केस में तो यही होता है, शुरू में पहली बार ड्रग्स उनको एक एडिक्टेड फ्रेंड देता है, उनको लगता हो पीने के बाद आनंद आ गया, ड्रग्स को लेने के बाद बहुत आनंद आ गया, क्योंकि सेंसेस, टेंशन लेने वाली सेंसेस काम करनी बंद कर गई और खुशी देने वाली सेंसेस शुरू हो गई। आप अपनी अलग मस्ती में हो जाओगे। वो शायद जो लोग ड्रग्स लेते हैं या कभी लिया है वो उसको ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। बट मैं आपको एक थ्योरेटिकल चीज बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली बच्चों पे होती है या लोगों पर होती है जो ड्रग्स लेते हैं। वो प्लीजिंग एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, तो उनको लगता है कि ये चीज तो आनंद देने वाली है, एक बार और ले लेते हैं कौन सी आदत पड़ेगी, तीसरी बार और लेते हैं कौन सी आदत पड़ेगी। अब ब्रेन उनको फोर्स करता है, खुशी तो हर आदमी चाहता है और खुशी के लिए हम कुछ भी करते हैं। अब ब्रेन कहता है यार तेरे खुशी, तेरे को जो एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिलती है वो लेने के बाद मिलती है, जा वो ले ले। तो ब्रेन कंट्रोल हो जाता है। मैंने आपको शुरू में कहा कि हम अपनी आदतों के स्लेव बन जाते हैं, दास बन जाते हैं, क्योंकि ये ब्रेन जो है ना, हम इसके दास बने हुए हैं, ब्रेन को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो वो जो इसीलिए हम क्या चाहते हैं, बारी बारी ड्रग्स को लेना चाहते हैं ताकि हमको खुशी हो, वो धीरे धीरे आदत बन रही है। बुरी चीज, कोई भी बुरी चीज हम शुरू में मजे मजे के लिए करते हैं। अच्छी चीज में शुरू में मजा नहीं आता, बाद में आता है। जैसे किसी की डोरबेल बजा के भाग जाना, बुरी आदत है बट मजा आता है उसमें, किसी को तंग करने में। ये ह्यूमन नेचर है कि हमको लोगों को तंग करने में मजा आता है। हम बुरी आदतें हम इसीलिए जल्दी अडॉप्ट करते हैं क्योंकि हमको उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है, और जितना ज्यादा हमको मजा आएगा हमारा ब्रेन कहेगा यार तेरे को खुद को बहुत खुशी मिल रही है, वो आदत कर, वो काम कर, वो काम कर, वो काम कर, और करते करते वो आदत आपकी फॉर्म्ड हो जाती है, फॉर्म के बाद सीमेंटेड हो जाती है। दूसरे मैंने आपको आंसर दिया कि बुरी आदतें जल्दी क्यों डेवलप होती है। अब बुरी आदत को तोड़ना कैसे है, प्रोसेस सेम है, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन पे यही था। आपको उस आदत को रिप्लेस करना पड़ेगा, बट आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आप एक प्लीजिंग हैबिट को रिप्लेस कर रहे हो तो आपको एक प्लीजिंग हैबिट से ही रिप्लेस करनी पड़ेगी। आपको कोई एक ऐसी अच्छी चीज ढूंढनी पड़ेगी जो आपको उस हद तक की खुशी देती है, क्योंकि खुशी खुशी से ही रिप्लेस हो सकती है। तो आपकी बुरी आदत आपको खुशी दे रही है, आप एक अच्छी आदत ढूंढ लो जो आपको खुशी देगी, फिर रिप्लेस करना शुरू करो। इट इज इजी टू रिप्लेस। इन द सेम केस ऑफ ड्रग्स, जैसे जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके लिए एक टैबलेट आई है निकोटेक्स, वो कुछ सिगरेट्स के फ्लेवर को रिप्लेस करती है निकोटेक्स। जब भी सिगरेट पीने का दिल करे निकोटेक्स खा लो, क्योंकि वो प्लीजिंग जो है ना, जो टेस्ट प्लीजिंग है वो सेम है दोनों में। अब हम उसी बुरी आदत को एक अच्छी आदत से रिप्लेस कर रहे हैं, बट प्लीजिंग को सेम इंटेंसिटी पे रख रहे हैं। तो हमको वो प्लीजिंग, अपनी प्लीजिंग चीजों को ढूंढना है, सेम इंटेंसिटी वाली प्लीजिंग चीजों को हम करना शुरू करेंगे तो रिप्लेस होना शुरू हो जाएगी। Which is the better habit to study in the morning or to study late night? Whether it जिसमें comes भी in आप कंफर्ट रहते हो the area or it is routine.
नहीं, जिसमें भी आप कंफर्ट रहते हो, जब आप ज्यादा फोकस कर पाओ, क्योंकि आपको अपने घर का नेचर पता है। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा शोर शराबा रहता है मॉर्निंग आवर्स में, तो मॉर्निंग आवर्स इज नॉट गुड। इवनिंग में बहुत ज्यादा शोर शराबा रहता है, तो इवनिंग आवर्स आर नॉट गुड, जिसमें आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है। बट साइंस ये कहती है, जो भी काम आप सुबह सुबह 4 to 6 के बिटवीन करते हो, उस समय आपकी ग्रास्पिंग पावर ज्यादा है। तो अगर आप 4 to 6 के बिटवीन पढ़ते हो, तो साइंटिफिकली ग्रेस्पिंग पावर ज्यादा है। बट आपको अपना रूटीन पता है, 4 बजे उठने के लिए आपको 8 बजे सोना है। अगर आप सो ही नहीं पा रहे 8 बजे किसी भी वजह से, तो मॉर्निंग आवर्स की स्टडी तो आप कर ही नहीं पाओगे, आपको इवनिंग आवर्स पे ही जाना पड़ेगा। दैट डिपेंड्स ऑन योर स्केड्यूल। आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक उसी स्केड्यूल को धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेती है। बट आपको अपना स्केड्यूल अच्छे से प्लान करना चाहिए, डिजाइन करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करना चाहिए। मेरे केस में तो मुझे लगता है कि दोनों ही टाइम बहुत अच्छे हैं, मॉर्निंग भी और इवनिंग में। और मॉर्निंग में मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मॉर्निंग में तो उठूंगा तो पार्क चला जाऊंगा, योगा कर लूंगा, मेडिटेशन कर लूंगा, पढ़ाई नहीं होगी मॉर्निंग में मुझसे, ये सारे काम होंगे। तो उसके बाद मैं आफ्टरनून में पढ़ता हूँ, क्योंकि आफ्टरनून में बहुत साइलेंट टाइम होता है। मैं मेरे ज्यादातर वेबिनार्स आफ्टरनून में रखता हूँ, क्योंकि आफ्टरनून इज ऑल्सो वेरी साइलेंट टाइम। और इवनिंग आवर्स में अगेन आई कैन नॉट स्टडी, आई थिंक दिस इज अ फैमिली टाइम, लेट्स स्टे विद द फैमिली एंड स्लीप साउंडली। So, okay, Pankaj, I think a number of questions have been addressed by you. Form the good habits, start reading good books, and if you wake up early in the morning, that's a precious gift to you. So that's what I wanted to tell at last. So, thanks a lot, Pankaj ji. On behalf of Training and Placement Cell, Guru Jambeshwar University of Science and Technology, Hisar, I would like to uh, express my heartiest thanks to you for Thank coming you, on sir. the Thank you session, very much, sir. delivering a very wonderful interaction. Thank you very much, everyone, for watching it. I every time say, I'm a speaker. I'm not a speaker without you people. I 100% belong to you. You can ask any of the question on my social media, Instagram, LinkedIn, Facebook. I would be happy to help you, support you, and guide you and to mentor you. And I 100% belong to you. Keep this in the mind. You can bother me any time, any point of the time of your life, not even my life. Thank you very much for watching this. Thank you. Thank you, Pankaj ji. Thanks a lot. Thank you, sir.